from pricing inefficiencies in the market by making simultaneous trades that offset each other and capture a risk-free profit. An arbitrator may also seek to make profit in the case there is a price discrepancy between the stock price in the cash market and the derivative market. जब भी आपको गैप दिखाई देगी कैश और फ्यूचर्स के अंदर, whenever there is a gap between the cash price and the future price, that is called as price discrepancy. प्राइस डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है जब भी आपको कैश प्राइस और फ्यूचर प्राइस अलग अलग दिखेंगे तो उसमें आप उसका आर्बिट्रेज का पॉसिबिलिटी रहेगा. अगर ये दोनों प्राइसेस सेम हो जाएंगे तो इसमें प्राइस का डिस्क्रिपेंसी नहीं रहेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइस शुड बी डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, on 1st August 2019, the Jay Corporation Limited share is trading at 1780. Now this is the cash market price. This is a spot price. I will write here. This is the spot price going on in the market. If you want to buy this share and take a delivery in the demat, you can take it at 1780. नो बेसिस ही है ना, इसका जो डिफरेंस होता है वो बेसिस होता है. एंड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जय कॉर्पोरेशन is trading at rupees 1790. This is the future price. So the spot price is 1780 and the future price is 1790. See the difference is 10 rupees. मुझे क्या करना चाहिए? मैं आर्बिट्रेजर हूँ. आर्बिट्रेजर क्या करता है? साइमल्टेनियस परचेज एंड साइमल्टेनियस सेल. मुझे कहाँ से बाय करना चाहिए? स्पॉट से बाय करना चाहिए. स्पॉट मार्केट में सस्ता मिल रहा है 1780 और फ्यूचर प्राइस ज्यादा है 1790. टेल मी इन द कमेंट मुझे क्या करना चाहिए. मैं आर्बिट्रेजर हूँ, मुझे बाय करना चाहिए स्पॉट में और फ्यूचर में मुझे सेल करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर का प्राइस ज्यादा है. जहां पे भी प्राइस ज्यादा होता है वहां पे हमें बेचना चाहिए और जहां पे प्राइस कम होता है वहां पे हमें परचेज करना चाहिए. तो वी विल परचेज एट 1780. ओके. एंड फ्यूचर प्राइस में मुझे सेल करना चाहिए. I will buy from the spot and I will sell in the future. This is a arbitrage. और मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 10 rupees. I will get a profit of 10 rupees because I have bought at 1780 and I have sold at 1790. But what will happen on the expiry day? एक्सपायरी के दिन दोनों का प्राइस सेम हो जाएगा. फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस विल बिकम सेम. फ्यूचर प्राइस इज इक्वल्स टू स्पॉट प्राइस. तो जब भी आर्बिट्रेजर को अगर आर्बिट्रेज करना है, आर्बिट्रेज का प्रॉफिट कमाना है, तो हमेशा एक्सपायरी के पहले आपको स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस दिखेगा. आप इसमें आर्बिट्रेज कर सकते हो. एक्सपायरी के तक एक्सपायरी दिन आ गया. On expiry date, the future price and the spot price will become equal because of time decay. Price convergence होता है और expiry के दिन वो price same हो जाता है. The settlement of future contract will happen at the closing price of the Jay Corporation Limited shares.
सेटलमेंट कौन से प्राइस पे होगी? क्लोजिंग प्राइस पे। On the expiry, the future and the spot prices are said to converge on the expiry day. Expiry day के दिन क्या होगा? दोनों का प्राइस सेम हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्राइस कन्वर्जेंस। प्राइस कन्वर्जेंस। So, because of price convergence, the arbitrator will not get any profit on the expiry. There are three possible price scenarios. Let us calculate the profit or loss of the arbitrator in each of the scenarios. Where he had initially purchased the Jai Corporation shares in the spot market at 1780 and sold the future contract at rupees 1790. So first scenario, Jai Corporation Limited shares closes at price greater than 1780, say rupees 2000 in the spot market on the expiry day. So on the expiry day, Jai Corporation shares are closing at premium, that is 2000. You have purchased at 1780 and on expiry it goes to 2000. Jai Corporation Limited future will close at the same price as the Jai Corporation Limited in the spot market on expiry day. The futures will close at 2000. अगर spot price expiry के दिन 2000 है तो spot price भी same होगी और future price भी same होगी। एक्सपायरी के दिन दोनों का प्राइस सेम हो जाता है, तो ये एक्सपायरी का प्राइस है। एक्सपायरी डेट होती है आपकी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, प्रॉफिट और लॉस इन स्पॉट मार्केट 2000 माइनस 1780 इज 220। स्पॉट में आपने देखा 1780 से कहाँ पहुंच गया 2000, ये आपका डिफरेंस है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट और लॉस इन द फ्यूचर मार्केट इज 1790 क्योंकि आपने इस पे सेल किया था, यहाँ पे आपने बाय किया था। याद है पहले आपने ये क्वेश्चन में देखा था 1780 स्पॉट प्राइस था और एक्सपायरी के दिन दोनों का प्राइस 2000 है। आपने इस पे बाय किया था और इस पे सेल किया था। अभी स्क्वायर ऑफ भी तो करोगे ना, आप इस पे सेल करोगे तो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। कैश मार्केट में स्क्वायर ऑफ करेंगे पहले एक्सपायरी के दिन और फ्यूचर मार्केट में भी स्क्वायर ऑफ करेंगे एक्सपायरी के दिन। फ्यूचर्स में हमने सेल किया था तो फिर बाय करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे 210 का लॉस हो गया। नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन बोथ द ट्रांजेक्शन, दोनों को प्लस करके देखिए, ज्यादा प्रॉफिट है लॉस कम है तो 10 रुपीज का वापस से हमें प्रॉफिट हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। ओके, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है 1780 और 1790 तो मैं पीछे जाती हूँ पहले वाले पेज पे। देखिए यहाँ पर कौन सी तारीख है, यहाँ पर आपने 1 अगस्त को एंट्री किया और जय कॉर्पोरेशन के फ्यूचर्स और कैश में आपने डिफरेंस को देखा। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है गैप, प्राइस में गैप अगर आपको दिखती है तो आपको सस्ते में खरीदना है और महंगे जहां पर भी महंगा है वहां पर बेचना है। तो आपने क्या किया था, स्पॉट में बाय किया था और फ्यूचर्स में आपने सेल किया था।
तो अब इसको स्क्वायर ऑफ भी तो करना होता है। सिनेरियो 1 में क्या हो रहा है, एक्सपायरी के दिन 2000 प्राइस हो जाएगी, इसका एक्सपायरी है 24 अगस्त, आपने 1 अगस्त को एंट्री किया, 24 अगस्त को इसका थर्सडे आ रहा है, सपोज 24 अगस्त अगर थर्सडे आता है तो उस दिन जो प्राइस होगी उस पर आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, कैश और फ्यूचर दोनों में। अगर कैश में बाय किया है तो 24 अगस्त को आपको सेल करना पड़ेगा। फ्यूचर में अभी आपने सेल किया है, ऑन फर्स्ट यू हैव सोल्ड, सो 24 को आप बाय करोगे। अगर फर्स्ट को आपने सेल किया है तो एक्सपायरी के दिन 24 तारीख को आप बाय करोगे। तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ व्हाइट बोर्ड पे। फर्स्ट अगस्त स्पॉट में मैंने बाय किया है 1780, फ्यूचर्स मैंने सेल किया है, कौन सी कंपनी का सेल किया यहाँ पे लिखेंगे, जय कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फ्यूचर्स में मैंने सेल किया है। अभी आपने स्पॉट में अगर बाय किया है, स्पॉट मार्केट में बाय और फ्यूचर मार्केट में आपने सेल किया, इसको बोल रहे हैं हम आर्बिट्रेजर। ऑन एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन उल्टा करेंगे, जो भी पोजीशन है ओपन पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करेंगे। ऑन एक्सपायरी डेट 24 अगस्त 2019, ये एक महीने का हो गया। 24, ये सिद्धेश शेट्टी आपके क्लास का है क्या? यस मैम। ये टाइम है आने का, मैं नहीं लेने वाली हूँ अभी, बहुत लेट बच्चे है ना उसका फायदा उठा रहे हैं अभी, इसका लेट आते हैं बहुत जानबूझ के। तो अभी ये 24 को आपको समझ जाना है, जैसे 24 तारीख दी होगी ना तो आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा स्क्वायर ऑफ करो, लेकिन आप खुद ही समझ जाना कि सिनेरियो ऐसा होता है कि फर्स्ट को अगर हमने स्पॉट में खरीदा है तो स्पॉट में हम लोग बेचेंगे। दो 2000 प्राइस है, फ्यूचर्स में भी ऐसा ही है। फ्यूचर्स में हम बाय करेंगे, पहले हमने सेल किया है, इसका स्क्वायर ऑफ करेंगे और प्राइस दोनों में सेम रहेगी क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्राइस सेम रहती है 2000 में। चलिए आप मुझे अब बताइए, डिफरेंस निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस। ऑन द स्पॉट मार्केट इज, पहले सेलिंग प्राइस लिखेंगे, पहले सेलिंग प्राइस हमेशा लिखते हैं और बाद में बाइंग प्राइस, ये हमेशा रूल याद रखो, पहले सेलिंग प्राइस फिर बाइंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या है हमारा,
स्पॉट मार्केट का सेलिंग प्राइस क्या है, देखिए यहाँ पे सेल किया है 2000 में, और बाय कौन से रेट पे किया था, बाय फर्स्ट को किया था, फर्स्ट को बाय किया था 1780 में। यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर जहाँ पे है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, 2000 माइनस 1780, कितना प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, बाइंग प्राइस कम है, 220। अब फ्यूचर मार्केट का प्रॉफिट लॉस बताइए। फ्यूचर्स मार्केट, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, आपने सेल किया है 1790, देखो मेरा कर्सर कहाँ पे है, पहले आपने सेल किया था फ्यूचर्स में, यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर है, 2000 में आपने खरीदा, इज इक्वल टू माइनस 210। तो अभी लिखेंगे नीचे नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ आर्बिट्रेजर इज इक्वल टू 220 प्रॉफिट माइनस 210। नेट प्रॉफिट हम लोग देखेंगे तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, फिर भी क्लियर। एनी डाउट, दिस वाज द फर्स्ट सिनेरियो। 1 अगस्त को मैंने प्राइस में डिस्क्रिपेंसी देखा और आर्बिट्रेज करना चालू कर दिया, और आर्बिट्रेज करते हैं तो उसको स्क्वायर ऑफ भी करना पड़ता है दोनों मार्केट में। स्पॉट मार्केट में अगर जो पोजीशन लिया है उसका स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, लॉन्ग पोजीशन किया है तो भी स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। So this is arbitrage using futures. This was the first scenario. आपके क्लास में बच्चे क्यों कम आते हैं और आराम आराम से आ रहे हैं? 11 बजे 12 बजे जब लेक्चर होता है तो 12 बजे एंटर करना चाहिए ना, 12:05 तक भी एंट्री करोगे तो भी चलेगा, लेकिन करो एंट्री उसी वक्त, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट पहले से समझ में आएंगे, तो जब पहले पहले बैठोगे ना लेक्चर में तो ही समझेगा। सिद्धेश और नंबर 7 मिहिर, आप लोग लेट आए थे। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो 1, इसको सेव कर दीजिए। न्यू शेयर, second scenario, Jay Corporation shares close at 1780 in the spot market. This is the price of spot market on 24th August. Suppose second scenario में जहाँ पे था प्राइस वहां पे ही रहेगा 24 तारीख को। Jay Corporation Limited futures will close at the same price as Jay Corporation in spot market on expiry day. Future will also close at 1780. The arbitrator reverses his previous transaction entered on 1st August. Reverse मतलब square off. The arbitrator will reverse. Reverse का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ करेगा एक्सपायरी के दिन। कैसे करेंगे स्क्वायर ऑफ? चलो वापस से याद करो क्या क्या किया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट को क्या किया था। देखो यहाँ पर ये बार बार देखना है, एग्जाम्पल दिया है ना, यहाँ पर हमें वापस देखना है। स्पॉट में हमने 1 अगस्त को 1780 पे बाय किया था और प्राइस सेकंड सिनेरियो में वहीं पे खड़ी है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं आया है, स्पॉट प्राइस 24 तारीख को भी सेम है 1780। तो अगर आपने बाय 1780 में किया है, सेल भी आप 1780 में करोगे 24 तारीख को, तो आपको लॉस होगा ही नहीं, जीरो होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा।
अगर 24 तारीख को भी प्राइस ये है, पहली तारीख को भी यही प्राइस थी, मूवमेंट हुआ ही नहीं है, वहीं पे खड़ा है शेयर प्राइस, तो आपने यहाँ पे अगर बाय किया है 1780 में, आप सेल करोगे 1780 में, तो आपको तो जीरो ही आएगा, बराबर। उसके बाद ये जो आपने फ्यूचर सेल किया था 1790 में, फर्स्ट तारीख को आपने फ्यूचर को बेचा, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस ज्यादा थी तो आपने बेचा था। जहाँ पे प्राइस ज्यादा होती है हम सेल करते हैं, आर्बिट्रेजर का ये रूल है, जहाँ पे कम है खरीदो, जहाँ पे ज्यादा है बेचो। तो आपने 1790 में 1 अगस्त को बेच दिया। अभी आप क्या करोगे, 24 तारीख को आप खरीदोगे, फर्स्ट को अगर आपने बेचा है तो 24 को एक्सपायरी आ रही है, उस दिन आप खरीदोगे। अब वो लोग बोल रहे हैं प्राइस 1780 हो गई है, प्राइस हो गई है 1780, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, फ्यूचर्स में 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ पे जीरो होगा। चलिए करते हैं, चलिए यहाँ पे ये सेकंड सिनेरियो है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिनेरियो 2। देखिए बहुत इजी है, सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस 1780 ही रहेगी, और जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट और लॉस ऑन द फ्यूचर डेट, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, 1790 में हमने सेल किया था 1 अगस्त को, 24 अगस्त को प्राइस हो गई 1780, सेलिंग प्राइस आपकी 1790 है, बाइंग प्राइस 1780, तो आपको प्रॉफिट हो गया 10। अब यहाँ पे हम करेंगे नेट प्रॉफिट टोटल 0 प्लस 10 रुपीज। सेकेंड सिनेरियो में भी हमारा वही आ रहा है, 10 रुपया प्रॉफिट आर्बिट्रेज में से। ऐसे 3 सिनेरियोज हैं, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ, आपको चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगी। ओके, ऑन एक्सपायरी द प्राइस इज सेम, any difficulty, anyone having any difficulty they can ask. कुछ तो बोलो, नहीं बोल रहे हो मतलब डाउट ही डाउट है तुम लोगों को। दो चीजें हो सकती है, यहाँ तो समझ में आ गया अच्छे से, यहाँ तो कुछ नहीं आया समझ में। कुछ तो लिखो कमेंट में, यहाँ बोलो, आप अनम्यूट होके बताओ कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, ओके। अभी देखते हैं थर्ड सिनेरियो, ये हो गया लिख के सबका? अच्छा ये हो गया है ना लिख के? ओके, थर्ड सिनेरियो,
Jay Corporation Limited shares close at 1500 in the spot market. 24 तारीख को एक्सपायरी डेट है. एक्सपायरी के दिन प्राइस हो जाता है 1500, जो 1780 चल रहा था अब हो गया है 1500. फर्स्ट को क्या था प्राइस? फर्स्ट को आपने कैश मार्केट में बाय किया था 1780 पर. ठीक है, तो 1780 से 1500 कैश मार्केट में प्राइस है, और एक्सपायरी के दिन फ्यूचर और स्पॉट आपको पता है सेम हो जाता है. तो फ्यूचर प्राइस भी 1500 है, स्पॉट प्राइस भी 1500 है. चलिए करते हैं इसको. थर्ड सिनेरियो. एक्सपायरी के दिन प्राइस हो जाता है 1500. ठीक है, एक्सपायरी का प्राइस सिर्फ चेंज करना है. ये प्राइस तो आपका कॉमन है तीनों सिनेरियोज में. तो आपका ये आपने सेल किया है 1500 में, यहाँ पे लिखेंगे 1500. तो लॉस कितना होगा? 1780 में सेल किया, सॉरी नहीं, 1500 में सेल किया और 1780 में बाय किया है. देखिए यहाँ पे बाय किया था पहले स्पॉट में, पहले मैंने बाय किया था 1780 पे, और मैंने स्पॉट में सेल किया, स्क्वायर ऑफ किया 1500 में. तो यहाँ पे कितना हुआ? -280. एक मिनट, कमेंट में देख रही हूँ क्या है, किसी ने तो कमेंट किया है. एक मिनट. 280 लॉस, वेरी गुड. यहाँ पे 290 प्रॉफिट और 280 लॉस दोनों को प्लस कर देंगे, इज इक्वल्स टू 10 रुपीज प्रॉफिट. तीनों सिनेरियोज में आपको 10 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, समझ में आया सबको? इजी है ये. स्क्वायर ऑफ कर कैसे करते हैं? एक्सपायरी के दिन स्क्वायर ऑफ होता है. एक्सपायरी के दिन दोनों का प्राइस सेम क्यों हो जाता है? स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस सेम क्यों हो जाता है? प्राइस कन्वर्जेंस है. अगर इसमें गैप, वापस से गैप दिखेगी तो आर्बिट्रेजर यहाँ पे भी स्क्वायर ऑफ नहीं करेगा, फिर न्यू पोजीशन लेगा. तो एक्सपायरी के दिन ये आर्बिट्रेजर को कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो एक्सपायरी के दिन स्क्वायर ऑफ ही करने वाला है. हाँ, चैट में क्या है? हाँ, they can't earn more profit. Okay, very good. Any difficulty? Any difficulty, anyone? सब लोग कमेंट में बताओ, समझ में आया है तो क्लियर लिखो. ऑल द स्टूडेंट्स. क्लियर. पहले भी ये सम्स किए थे हमने, वो मैंने एक्सेल शीट में करवाए थे ना, वो मैंने अपने एग्जाम्पल्स दिए थे. यहाँ पे अभी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स को हमने व्हाइट बोर्ड पे किया है. ओके, क्लियर. इसको सेव कर दिया है मैंने. अब आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए आपके क्लास का. कॉलेज TYBMS.